Assalamu alaikum students. This is our third lecture. In the previous lecture we have studied the first 3 paragraphs of the first chapter, The Dying Sun. Now we will read the 4th paragraph. The sun and the other stars we see in the sky are all extremely hot, far too hot for life to exist on them. So also no doubt were the pieces of the sun. When they were first thrown off, gradually they became cooler, until now they have very little heat of their own left, their warmth coming almost entirely from the radiation which the sun pours down on them. In course of time one of these cooling pieces gave birth to life. We do not know how, when or why this happened. It started in simple organisms whose living power consisted chiefly in their being able to reproduce themselves before dying. But from these humble beginnings came a stream of life which, growing ever more and more complex, has in the end produced beings whose lives are largely centered in their feelings and ambitions, their sense of beauty, and the religions in which lie their highest hopes and noblest desires. सूरज और दूसरे सितारे जो हम आसमान पर देखते हैं बहुत ज़्यादा गर्म है, इस कदर गर्म है कि उन पर ज़िंदगी का कोई वजूद मुमकिन नहीं है। लेकिन जब ये सितारे टुकड़े जो हैं सूरज से अलग हुए तो आहिस्ता आहिस्ता उनका जो दर्जा हरारत है वो कम होने लगा, यहाँ तक कि उनमें अपनी कोई हरारत बाकी नहीं रही और वो अपनी तमाम तर गर्मी जो है वो सूरज की शुआओं के ज़रिए हासिल करने लगे। और इनमें से ही एक ऐसा टुकड़ा था जो निस्बतन ज़्यादा सर्द हो गया और जिसने जो है वो ज़िंदगी को जन्म दिया। हम नहीं जानते कि ये कब और कैसे हुआ। सबसे पहले सादा किस्म के जानदार वजूद में आए जो सिर्फ अपनी तरह के ही जानदार दोबारा पैदा करने की सलाहियत रखते थे, और फिर इसके बाद जो है वो ज़्यादा पेचीदा जानदार वजूद में आए जिनमें क्या था, जिनमें फीलिंग्स, एहसासात, एम्बिशंस, ख्वाहिशात, सेंस ऑफ ब्यूटी, ज़ौक़ जमालियात, रिलीजन्स, मज़ाहिब और हाईएस्ट होप्स, बुलंद उम्मीदें और नोबलेस्ट डिज़ायर्स, नेक ख्वाहिशात जो है वो पाई जाती थीं। As you can see that there are different words which are highlighted. These words have repeatedly asked in your objective paper. MCQs में पूछे गए हैं और ये you have to learn their synonyms. For example, the words are extremely, जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा, too much, gradually, slowly, आहिस्ता आहिस्ता, gave birth, produce, organisms, लिविंग थिंग्स, और स्ट्रीम का मतलब है फ्लो। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जो बताए थे वर्ड्स जो हाईलाइटेड हैं, जिसमें है सेल्डम यानी कि बहुत कम, समटाइम्स, रेयर मीन्स स्ट्रेंज, नॉट ऑफन, और वांडरिंग मीन्स मूविंग, इमेंस मीन्स बहुत जो है बड़ा यानी कि वेरी ह्यूज। Although we cannot speak with any certainty, it seems most likely that the human race came into existence in some such way as this. Standing on our little grain of sand, we try to discover the nature and purpose of the universe which surrounds our home in space and time. Our first feeling is something like fear. We find the universe frightening because of its immense distances which we do not understand, frightening because of the stretches of time so great that we cannot imagine them, making the whole of human history so very small in comparison, frightening because of our extreme loneliness and because of the littleness of our home in space, a millionth part of a grain of sand out of all the sea and in the world. हम ये बात जो है वो यकीन से तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादा इम्कान यही लगता है कि इंसानी नस्ल जो है वो ऐसे ही किसी तरीके से वजूद में आई। रेत के छोटे से ज़र्रे पर खड़े होकर हम कुदरत और कायनात के मकसद को दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं जो खला में वक्त और हमारे घर को घेरे हुए है। हमारा पहला एहसास जो है वो किसका होता है, वो खौफ का होता है।
इस वजह से हम जो है वो कायनात से खौफज़दा है, क्योंकि उसके वसी तर फासलों को देखकर और उसकी वक्त की वसअतों को देखकर, जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते और जिसको हम समझ नहीं सकते, और जिसके मुकाबले में हमारी जो इंसानी तारीख़ है वो बहुत छोटी है। खौफज़दा हैं अपनी हम मुकम्मल तन्हाई की वजह से और खला में ज़मीन के छोटेपन की वजह से, जो रेत के ज़र्रे के 10 लाखवें हिस्से में जो दुनिया के तमाम साहिल समुद्रों की रेत में से है। But above all else, we find the universe frightening because we cannot find any sign that life like our own exists anywhere in it, except on the earth. Indeed, for the most part, empty space is so cold that all life in it would be frozen. Most of the matter in space is so hot as to make life on it impossible. Life does not seem to have any part in the plan of the universe which produced our planetary system. Calculation shows that there can be only very few such systems in space. Yet, so far as we can see, life of the kind we know on Earth can exist only on planets like the Earth. It needs suitable physical conditions for its appearance, the most important of which is the temperature at which substances can exist in a liquid state. मगर सबसे बढ़कर हम कायनात को खौफज़दा इसलिए पाते हैं क्योंकि हमें कोई ऐसी अलामत दिखाई नहीं देती कि ज़मीन के अलावा कायनात में कहीं भी जो है वो हमारी जैसी ज़िंदगी वजूद में रखती है। और हकीकत यही है कि ज़्यादातर जो है वो खला का हिस्सा इतना सर्द है कि उस पर जो है वो ज़िंदगी जम जाए, या इस कदर गर्म है कि उस पर ज़िंदगी का वजूद मुमकिन ही नहीं है। और कायनात के मंसूबे में ज़िंदगी का कोई हिस्सा हमें नज़र नहीं आता जिसने हमारे सैयारों के निज़ाम को पैदा किया है। और एदादो शुमार से ज़ाहिर होता है कि खला में ऐसे निज़ाम बहुत ही कम हो सकते हैं। फिर भी यहाँ तक हम देख सकते हैं कि इस किस्म की ज़िंदगी जो हम ज़मीन पर जानते हैं, ज़मीन की तरह ही कि किसी सैयारे पर मुमकिन है, क्योंकि जो है इसे अपने ज़ाहिर होने के लिए तबई हालात की ज़रूरत है, जिनमें सबसे ज़्यादा अहम जो है वो दर्जा हरारत है, जिस पर मादी अशिया जो है वो लिक्विड या माया हालत में पाई जाती हैं। The stars themselves are far too hot for this. We may think of them as a collection of fires scattered through space, providing warmth in surroundings where the temperature is at most 4 degrees above absolute zero, that is about 484 degrees of frost on the Fahrenheit scale. In the immense stretches of space beyond the Milky Way, it is colder still. Away from the fires, there is this unimaginable cold of hundreds of degrees of frost. Close up to them, there is a temperature of thousands of degrees at which all solids melt, all liquids boil. ये जो सितारे हैं ये ख़ुद भी बहुत ज़्यादा गर्म हैं और हम इन्हें खिला में बिखरे हुए गोले ख्याल कर सकते हैं जो अपने इर्द गिर्द के माहौल में जो है वो हरारत मुहैया कर रहे हैं। जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो हतमी 0 से 4 दर्जे ऊपर होता है और फ़ारेनहाइट के पैमाने पर नुक्ता इंजमात से तकरीबन 484 दर्जे नीचे होता है। कहकशां से यानी मिल्की वे से दूर खला की बड़ी वसअतों में सर्दी है। उन आग के गोलों से दूर नुक्ता इंजमात सैकड़ों दर्जे नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से नाकाबिले तसव्वुर हद तक जो है वो सर्दी हो जाती है। और उनके नज़दीक क्या है, जो दर्जा हरारत है वो हज़ारों दर्जे ज़्यादा हो जाता है, जिस पर जो तमाम ठोस चीज़ें वो पिघल जाती हैं और जो माया है या लिक्विड्स हैं वो उबलने लगते हैं। Life can exist only in a narrow belt surrounding each of these fires at a certain distance where the temperature is neither too hot nor too cold. Outside these belts, life would be frozen, inside it would be burnt up. A rough calculation shows that all such temperature belts within which life is possible, all added together, make up less than 1,000 millionth part of the whole of space. And even inside them, life must be very rare, for it is extremely unusual for suns to throw off planets as our sun has done. Probably only one star in 100,000 has the planet going round at the right distance for life to be possible on it. जो ज़िंदगी है वो सिर्फ़ एक तंग पट्टी पर ही जो है वो मुमकिन है, क्योंकि जिसके इर्द गिर्द जो है वो आग के जो गोले हैं वो मखसूस फासले पर हों, ताकि जो उसके इर्द गिर्द जो दर्जा हरारत है वो बिल्कुल सही रहे, ना ज़्यादा गर्म हो और ना ज़्यादा
सर्द हो, और अगर हम इन पट्टियों से बाहर जो है वो ज़िंदगी क्या हो जाएगी, मुंजमद हो जाएगी और इनके अंदर जल जाएगी। और अगर हम इन पट्टियों को जिन पर ज़िंदगी मुमकिन है इकट्ठा करें तो ये सारी खला के अरबवें हिस्से से भी कम बनती हैं और हत्ता के नायाब है, क्योंकि दूसरे सूरजों के लिए ये बहुत गैर मामूली है कि वो सैयारे फेंके जिस तरह के हमारे सूरज ने किया। और गालबन जो है वो लाखों सितारों में से सिर्फ एक सितारा ऐसा है जिसके गिर्द एक जो है वो सैयारा सही फासले पर गर्दिश करता है जिस पर ज़िंदगी का इम्कान जो है वो मुमकिन है, या जिस पर ज़िंदगी का जो है वो इम्कान हो। इस पेज पर आप देख सकते हैं कि 2 वर्ड्स जो हैं दे आर हाईलाइटेड, फ्राइटनिंग एंड मिल्की वे। फ्राइटनिंग मीन्स टेरिफाइंग, और जो मिल्की वे है इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स, गैलेक्सी, या जो है कहकशां। वी विल डू द आंसर्स एंड क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।